अस्सलामुअलैकुम। एबीएस डेवलपर्स नेशनल टी20 कप में खुश आमदीद। आज का दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप बी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा एबटाबाद और लाहौर ब्लूज के दरमियान। एबटाबाद के लिए मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मैच को जीत के वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। Well, the news from the toss is that Lahore Blues, they won the toss and decided to bat first. Aftabad region, Khalid Usman, Shahzeb Khan, they've got lots of talent in them. Shadab Khan gives them that balance in the middle. Arshad Iqbal is in good touch. They've got few changes also. Sajjad has been left out. Afaq Khan will be the wicketkeeper. On the other side, the captain is not playing, is not 100% fit. Umar Siddiq will do the captaincy. Ali Razak has been very impressive. Hunain Shah, Mohammad Salman, Shah Rukh Ali Chan is in the side for the first time, and the usuals making 11 for Lahore Blues as they decide to bat first after winning the toss. Asif Yaqub says all is set and ready. Let the cricket begin. Cuts on the very first delivery. Runs beautifully placed also. This is an excellent start from the in-form batter of Lahore Blues, Umar Siddiq. He gets going as I welcome alongside. I'm very excited to have the former captain Salman Butt alongside me. A very good afternoon to you, sir. Oh, that's 4. Is it off the bat? Is it off the pad? Is it off the thigh pad? That's the question. Yes, leg bye is given by the umpire. That's the gap. That's the gap we've been talking about. Huge gap. Sensible batting. He knew where to play and exactly placed it for 4. Oh, it's in the air, up in the air, fielder coming under. He makes no mistake. The most experienced, the most informed batter for Lahore Blues, Umar Siddiq goes. That's a huge blow for them. There's no problem with the front foot. It's a legal ball and a catch well judged and easily held at the square leg boundary. This bottom of the bat and only looping it. An easy opportunity for the fielder there. So the first wicket down for Lahore Blues. It's the captain who has to go. Lahore 28 for 1. He pulls one that handsomely well. Long enough. That's a fantastic hit from a talented young wicketkeeper batter. This was the expected length and exactly he got that in the very next delivery. And the good thing was that he was up for it. So he just used the pace and sent the ball into the stands over fine leg. ये खतरनाक शॉट थी और बेहतरीन अंदाज से इसको लिया मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर ने. खालिद उस्मान वाज द मैन इन चार्ज. तो इस तरह ये दूसरा धचका लगा है लाहौर ब्लूज को. बिल्कुल बहुत ही अच्छी बॉल नहीं थी ये अरशद की जानिब से। शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको गैप में खेलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए. और कैच भी बहुत ही उम्दा है, अपने सामने डाइव मारते हुए कैच लिया. खालिद उस्मान फील्डर हैं, तो यकीनन अब्दुल्ला आसिफ को जाना होगा. 10 रन बनाए इन्होंने 34 2 विकेटों के नुकसान पर. लेकिन इस बार इसको ऊंचा खेला है और खूब खेला है. देखिए ये एक ऐसा ही इस वक्त एटीट्यूड होना चाहिए बैटर्स का. ये गंभीर सूरत हाल जिन रही. इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया ऑन साइड पर. अब ये विद द स्विंग गेंद गई और वहां गई जहां पर इंटेंशन थी इस बार हमजा की, और एक बड़ा छक्का. बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये. हल्की सी लाइन मिस की है अरशद इकबाल ने, जिसको भरपूर तरीके से कलाइयों की मदद से उठा के खेला है. ये बड़ी अच्छी हाइट पर आई तो इस इनिंग का खात्मा हुआ. इस बार हमजा नाकाम हुए और कामयाब हुए अरशद. ये गेंद हवा में स्विंग भी थोड़ी हुई, लेकिन जो खूबसूरती थी इस गेंद की वो इसकी ब्यूटीफुल हाइट थी.
शानदार कमबैक है ये बॉलर का, हल्का सा फिंगर को रोल किया बॉल के ऊपर जिसकी वजह से हमजा डिसीव हुए, पेस के साथ जल्दी शॉट खेल गए अपना। तो शानदार कमबैक बॉलर का, 2 बाउंड्रीज हुई थी उनकी लास्ट बॉल पे लेकिन विकेट से उसका जवाब दिया। हमजा जहूर वापस जाना होगा, 18 रन किए इन्होंने 47 3 विकेट्स के नुकसान पर। बीच में और रबील इसके साथ ही आउट। तो ये एक और धचका है लाहौर ब्लूज के लिए। इस बार शाहरुख सामने थे, शादाब ने विकेट हासिल किया और आते ही उन्होंने एक कीमती, एक बड़ी विकेट हासिल कर ली है। बहुत ही जबरदस्त बॉल थी ये शादाब की जानिब से, और बैटर थे शाहरुख जिनका आज पहला मैच था लाहौर ब्लूज के लिए, और बहुत ही जबरदस्त ब्रेक हुआ है और शानदार कैच विकेट कीपर की जानिब से। मजबूर किया था बैटर को कि वो फॉरवर्ड आके इसको, शाहरुख अली आउट हुए, 1 रन बनाए 51 4 विकेटों के नुकसान पर। कट्स और बैकवर्ड पॉइंट पर ये बेहतरीन एफर्ट है। अब देखें, ये ऐसी पोजीशन है जहां पर जरा के शादाब इज द मैन इन चार्ज। शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको गैप में खेलना चाहते थे 1 रन के लिए, लेकिन वहां पे प्लेस थे बेस्ट फील्डर शादाब खान जिन्होंने अपने राइट साइड पे डाइव लगाई और इस कैच को कंप्लीट किया। तो एबटाबाद कुछ भी नहीं दे रहा लाहौर ब्लूज को, 2 शानदार कैचेस देखे हमने आज उनकी जानिब से। अली हसन बलोच को वापस जाना होगा, 7 रन बनाए इन्होंने 57 फॉर 5। की शख्सियत का, इनके हुनर का, इनके जौहर का। ऊंचा शॉट खेला है ऑन साइड पर और लगता है कि एक और विकेट गिर जाएगी और ये भी कोशिश नातमाम हुई। तो इस तरह एक और धचका लगा है लाहौर ब्लूज को, विकेट गिरने का तवातर जारी है। लीगल डिलीवरी है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है यहाँ पे, और बॉल को एयर दिया, फुल पिच आई बॉल जिसको उठा के खेला फील्डर की जानिब शाजेब खान जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान कैच लिया। मजबूर किया था बैटर को कि वो इस बॉल को उठा के खेले। अली रजा को जाना होगा, कोई रन नहीं बनाए 58 6 विकेटों के नुकसान पर। कट और अच्छी कट है। देखिए रन्स मिल जाते हैं आपको, चौके मिल जाते हैं। बॉलर खुद बाजुकात आपको एक ऐसी गेंद देता है जिसपे आप चौका लगा लेते हैं, और एक अच्छी बाउंड्री हासिल की। Struck beautifully, 4 behind point. It was well timed. Ali Razak, he can look very elegant while striking the ball. The boy who's on top left alongside Irfan Fazil is Rizwan, is their prime bowler as he goes straight to the fielder. Ali Razak loses the patience, loses the wicket. Yeah, this is unfortunate. I just spoke about him finding the fielders. So when you even want to go for a big shot, you got to target a gap. You just can't make it that easy for the fielders and for the bowling side. Unfortunately for Ali, he has to go. 14 he got of 16. Lahore in further trouble, 78 for 7. The University of Lahore, their silver jubilee of building a legacy. And it's a ball behind the stumps. So the ball is spinning for Shadab, and it's giving him good chance of picking up wickets, and this is the second one that he's picked up. It's a dream delivery for a leg stump. Round the legs. Just doesn't get any better than this for a leg spinner, bowling a delivery round the legs and getting the leg stump. Beautiful delivery. Shadab Khan is on a roll, is taking the second wicket, and Ensha goes back, scoring 10, 82 for 8. That's out, that's out, that's out. Yes, it is. Fantastic googly. Even the best of the batters would have found it difficult. You don't see it as much at the international stage. And this is bowled at a really good pace as well and turned a fair deal. No problems for the umpire, as it was a plum. Salman came in and went on a silver duck maybe of the second ball. 82 for 9. Appearances over here, and it's cleaned up. The last wicket is gone as the stumps are shattered. Shahab picking up his second wicket, and the last wicket of Lahore Blues, who are now bowled out on their lowest total, 86 that is. Yeah, stumps castled by the fast bowler. Have a look at this. Yeah, you don't really expect much from the number 11 batter when you're
top order batters have disappointed you. 86 all out is Lahore Blues in 14.3 overs. All eyes would be on Fakhar Zaman. The first delivery of the run chase. Yeah, right from the middle of the bat. Oh no! He's played it up in the air. And he takes it. It was a pressure catch. Captain underneath it. Smartly taken. Yeah, some encouragement there for Lahore. They've picked the big one very early. And it's a legal ball. Fakhar Zaman just trying to flick one. And just getting the top edge. And it went really high. And underneath was a cool and calm customer. Umar normally is with the gloves in hand behind the stumps. But he takes a good one this time at mid-off. So Fakhar goes for naught. And Aptabal are none for one. Bang, that's straight down the ground. Long enough, yes. Kamran Ghulam is in tremendous form and is cashing on it. You're always far better off playing straight down the ground. And this is exactly what Kamran Ghulam has just shown us all. It was in his zone and he smashed it for a straight six. And they come in and they already have two on the boundary. And talk about boundary, it's another one. This time over point, quicker ball. There was a lot of room. And the batter, he just freed his arms, slashed it over point. Up and over. Brilliant. Brilliant from Shahzeb. You pitch it up to him, is not going to miss out on you. Glorious hit for four. Yeah, that's beaten the fielder. Another boundary for Shahzeb. Straight down the ground. This is poor from Hunain, and it gets what it deserved. On the legs, asking for trouble. Another boundary. Yeah, that's gone through the fielder's hand for four. That's not good from Lahore Blues. Oh wow, magnificent. That is a shot and a half. For six by Kamran Ghulam. Brilliant batting from KG. 5 done, 45 for 1. ये T20 का खास है और ये शाहजेब है एक्सट्रीमली टैलेंटेड इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर दीजिए जनाब ये बड़ा छक्का निशिस्तों के ऊपर जाके गिरा तो इस तरह ये 50 रन बन गए 51 पर 1 बिल्कुल अब एबटाबाद की टीम रुकना नहीं चाहती यहाँ पे चाहती है कि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म कर दिया जाए और ये बॉल भी उनकी आर्क में थी बहुत अच्छे तरीके से खेला है इसको लॉन्ग ऑन पे उठा के खेला 6 रन के लिए नीचे एक और अटेम्प्ट इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने पे एक और चौका तो चौका की तो जैसे बारिश है और शाहजेब जो है ये कैच की आवाज है फील्डर गेंद के नीचे आए और आरामदेह कैच तो इस तरह शाहजेब की धुआंधार बैटिंग और इनिंग का खात्मा हुआ ये T20 क्रिकेट है बिल्कुल आप देखें कितनी ज्यादा क्रीज यूज करें इतनी ज्यादा पीछे से बॉल करवाई है ऑलमोस्ट स्टंप्स के साथ से बॉल करवाई है बिल्कुल पेस नहीं था और उसको अगेंस्ट ब्रेक खेलना चाहते थे शाहजेब तो जबरदस्ती एक छक्का हासिल करना चाहते थे बहुत अच्छा सेटल थे लेकिन उतना ही शानदार कैच तो पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए शाहजेब ने अच्छा डिस्प्ले किया 32 रन किए 19 बॉल्स पे लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है किसी वक्त विकेट गिरना शुरू हो जाए लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसके को जोरदार तरीके से कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब 4 रन के लिए बिल्कुल मैदान के साथ लगता हुआ ये स्ट्रोक था बिल्कुल महफूज
ये देखिए इस बार मीट ऑफ द बैट गेंद गई है 6 रन के लिए। काफी कोशिश की फील्डर ने लेकिन गेंद की दस्तक से बाहर थी। तो इस तरह एक और छक्का, सिर्फ 15 रन दूर है एबटाबाद की टीम। बहुत अच्छी जजमेंट थी कामरान की जानिब से। देख लिया था कि बॉलर इनवाइट कर रहे हैं, एयर दे रहे हैं, लेकिन फीट मूवमेंट बहुत कमाल थी। रीच किया बॉल को और उठा के खेला लॉन्ग ऑन की जानिब। इस बार शॉट थर्ड में की जानिब जल्दी करना होगी लेकिन पहुंच चुके थे डाउन स्ट्राइक करंट पर। ओवरथ्रो हुई, कॉल किया कामरान ने कि आप आ जाएं, अब आ जाएं। चलिए जरा यावरी की इस बार मिडॉन पकड़े हुए फील्डर ने कि चलिए संभल कर ऑफ साइड पर प्लेस के बाहर निकल आए थे। दूसरी तरफ आफाक और उजरत की जरूरत नहीं थी। बार ओवरथ्रो हो गया और उस पर सोने पे सुहागा कि ओवरथ्रो को भी नहीं रोका गया। ये ऐसा कम कम देखा है। मेरे ख्याल में वो हमें कभी कभी नजर आती है इन दोनों बैटर्स के दरमियान। इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर। ये छक्का होगा और बड़ा छक्का, और इसके साथ ही कामयाबी हासिल कर ली है छक्के के साथ। और कामरान गलाम जो हैं वो जाहिर है कि इस वक्त मरकज़ निकाह थे, छक्का लगाया उन्होंने। तो इस तरह अब एबटाबाद ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनके लिए बड़ा दिन और उनके लिए मुबारकबाद, उनके लिए तहनीयत। और यकीनन इनकी टीम और इनका कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर जो हैं शानदार तहनीयत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मैच समरी है। लाहौर सिर्फ 86 रन, 3 विकेटें हासिल की शादाब ने और शाद ने 2 विकेटें हासिल की, आप ने 2 विकेटें हासिल की। जबकि फिर जब हम बारी देखें, टर्न देखें, इनिंग देखें एबटाबाद की 87 पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट, 8.2 ओवर्स में तगड़ी टीम साबित हुई है एबटाबाद की। कामरान गुलाम ने 46 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, 32 रन बनाए। शाहजेब ने उमदगी से खेले, आफाक 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इन दी एंड एबटाबाद रीजन ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया।